اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز حضرات کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج پرائم نیوز میں بات کریں گے کہ پرائم منسٹر نریندر مودی، وزیر اعظم پی ایم مودی امریکہ اور مصر کا دورہ کرتے ہی ہندوستان آئے اور ہندوستان آتے ہی مسلمانوں کے زخموں پر نمک چھڑکنے کا کام کیا۔ سب سے پہلے تو آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ امریکہ میں مودی جی گئے، بہت بڑے پد پر بیٹھے ہیں، ہمارے وزیر اعظم ہیں۔ اگر وزیر اعظم کی بے عزتی ہو تو ہم سب کی بے عزتی ہوتی ہے، لیکن مودی جی نے وہاں اتنا بڑا انٹرنیشنل لیول پر انٹرنیشنل کیمروں کے سامنے اتنا بڑا جھوٹ بولا کہ جھوٹ بولنے میں ذرا بھی نہ ہچکچائے، نہ شرمائے، نہ غیرت آئی، نہ شرم آئی۔ جی ہاں، وہاں پر جا کر یہ جھوٹ بولا۔ ارے بھائی، جب انٹرنیشنل لیول پر اگر آپ سے سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ کے ملک میں الپ سنکھیان کا کیا حال ہے، اگر ان کے دماغوں میں یہ سوال آیا ہے، اس کا مطلب کچھ تو دال میں کالا ہے یا پوری دال کالی ہے۔ مگر آپ کو ذرہ برابر شرم نہیں آئی۔ آپ وہاں پر گھوم رہے تھے اور ادھر ہمارے مہاراشٹر کے ناسک ضلع میں بھگوا آتنکی موب لنچنگ کر رہے تھے، گو تسکری کے شک اور گائے ماس کے الزام میں یہاں پر موب لنچنگ کر رہے تھے۔ آخر 25 سال کا ایک نوجوان، مسلم نوجوان دم توڑ گیا۔ موب لنچنگ جگہ جگہ ہو رہی ہے، مسلمانوں کو، الپ سنکھیان کو، مائنورٹی کو دبایا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے، لیکن آپ یعنی نریندر مودی نے بڑی بے شرمی اور بے غیرتی کے ساتھ دنیا کے انٹرنیشنل لیول پر جھوٹ بول کر آئے اور ملک کی بے عزتی کر کے آئے۔ خود کی تو خیر ملک کی تو بے عزتی ہوئی ہے کہ یہ پہلا ملک ایسا ہے کہ جہاں پر اتنی بڑی پد پر بیٹھنے والا یعنی پی ایم پد پر بیٹھنے والا آدمی بھی کھلے عام جھوٹ بولتا ہے اور ذرا بھی جھوٹ بولنے میں ہچکچاتا نہیں ہے۔ تو خیر یہ تو کر کے آئے۔ چلیے آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مودی جی وہاں امریکہ سے آئے، مصر بھی جا کر آئے، مسلمانوں سے مل کر آئے، کھا کے آئے، اور پھر یہاں آتے ہی مسلمانوں کے زخموں پر گہرا نمک چھڑک دیا۔ جی ہاں، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ الیکشن مدھیہ پردیش کے قریب آ گئے تو حضرت مودی جی وہاں مدھیہ پردیش گئے اور مدھیہ پردیش میں انہوں نے انتخابی بگل بجا دیا، یعنی الیکشن کا یوں سمجھیے کہ ڈنکا اور باجا اور ڈھول پیٹ کے آ گئے، اور حضرت وہیں پر جاتے ہیں جہاں پر الیکشن آتے ہیں۔ آپ دیکھو کہ کرناٹک میں الیکشن تھے، منی پور جل رہا تھا۔ منی پور ہندوستان کا حصہ ہے، ہندوستان کے باہر نہیں ہے۔ منی پور جل رہا تھا، بے قصور مر رہے تھے، مارے جا رہے تھے، مگر حضرت کرناٹک کا الیکشن تھا تو وہاں پر اپنے آپ پر پھول برسا رہے تھے۔ آخر 2 مہینے سے منی پور جل رہا ہے۔ حضرت مودی جی کو مصر جانے کا موقع مل گیا، امریکہ جانے کا موقع مل گیا، لیکن ابھی تک کے منی پور جانے کا موقع نہیں ملا کیونکہ منی پور میں الیکشن نہیں ہے۔ خیر مدھیہ پردیش میں الیکشن ہے، اب وہاں پر حضرت پہنچ گئے اور وہاں پر پھر انہوں نے ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں یعنی ایک طرف یوں کہیں کہ ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے پھر مسلمانوں کے زخم پر نمک چھڑک دیا، اور وہاں پر انہوں نے یکساں سول کوڈ، کامن سول کوڈ، جی ہاں، اس کی وکالت کر دی، سمرتھن کر دیا، حمایت کر دیا۔ اور وکالت کرتے ہوئے مودی جی نے کہا کہ کوئی ملک 2 قوانین پر مبنی نہیں ہو سکتا، نہیں چل سکتا۔ اور کیا کہا سنیں آپ، اگلا جملہ انہوں نے کہا، مودی جی نے پوچھتے ہوئے، سوال پوچھتے ہوئے کہ اگر 3 طلاق اسلام کا حصہ ہے، اٹوٹ انگ ہے، تو پھر کیوں مصر، انڈونیشیا، قطر، اردن، شام، ان ملکوں میں 3 طلاق والے سسٹم کو مانا نہیں جاتا؟ ایسا سوال پوچھا دیا۔ تو سب سے پہلے تو ہم مودی جی کو یہ بتائے کہ سب سے پہلے کوئی ملک 2 قوانین پر نہیں چل سکتا، بالکل اچھی بات ہے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن
हमें सबसे प्यारा संविधान जो दिया गया है, जिसकी आप बड़ी तारीफ करके वहां पर अमेरिका में पूरी दुनिया के लोगों को बेवकूफ बनाकर आए, झूठ बोलकर आए, संविधान की वहां पर आप तारीफ कराए, उसी प्यारे प्यारे संविधान में जिसकी आप तारीफ करते हैं, कसम खाते हैं और फिर झूठ बोलने में भी आप नहीं हिचकिचाते, उसी संविधान ने इस प्यारे देश की एक खूबसूरती है कि जहां पर सैकड़ों हजारों मजहब के मानने वाले, अलग अलग रंग और अलग अलग जबानों के बोलने वाले रहते हैं। हमारे इस प्यारे देश और प्यारे संविधान की खूबसूरती है कि उसने तमाम धर्म के मानने वालों को अपने अपने धर्म पर अमल करने की मुकम्मल आजादी दी है और बरसों से इसी प्यारे संविधान के तहत हम सब चलते आ रहे हैं और इसी में इस मुल्क का अमन बाकी है, इसी में ये मुल्क बाकी है, इसी में मुल्क की शांति बाकी है और हर धर्म में जो अमल किया जा रहा है वो अपने अपने धर्म पर अमल कर रहे हैं। संविधान ने सबको आजादी दी है, मगर आप कॉमन सिविल कोड लाकर तमाम धर्म को आपस में लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। यकसा सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड कोई भी धर्म का मानने वाला इसे नहीं चाहता है। हाँ, जहां तक अनभक्तों की बात करें और आपके चाहने वालों की बात करें तो उनका तो बेचारों का मसला ऐसा है कि एकदम दिमाग में गोबर भरा हुआ है और उनका मसला तो ऐसा हो गया है हजरत कि तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। जी हाँ, तुमने पकोड़े तलने को बिजनेस बताया, गोबर भक्तों ने मान लिया, तो उनका तो मसला ऐसा है कि तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। सबके पेट पर मार पड़ रही है, महंगाई से सब जूझ रहे हैं, किसान मर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है, पढ़े लिखे नौजवान घूम रहे हैं, लेकिन अनभक्ति गोबर भक्ति दिमाग में ऐसी भरी हुई है कि कोई समझने को तैयार नहीं है। और आपकी पार्टी और जितने भी यहां पर लड़ाने वाले हैं उन्होंने इतना जबरदस्त अंदाज में हिंदू मुसलमान दिमागों में भर दिया है कि आप कुछ भी करे किसी के समझ में नहीं आ रहा। जब लुट जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तब जाकर समझ में आएगा। लेकिन चलिए आइए, प्यारे संविधान ने ही हमको अपने धर्म पर अमल करने की आजादी दी है और यकसा सिविल कोड की आप जिसकी वकालत कर रहे हैं, हम सब अहले ईमान, हम सब मुसलमान, और सिर्फ मुसलमान नहीं, कई छोटी छोटी जातियां हैं जो आपके इस फरमान को ठुकराती है, लात मारती है, कबूल नहीं करती है। कोई नहीं चाहता कि अपने धर्म को छोड़े और इस मुल्क के संविधान ने यह खूबसूरती रखी है कि हर शख्स अपने धर्म पर अमल कर रहा है और अपने संविधान को मान रहा है। लेकिन आप संविधान को भी खत्म करना चाहते हैं, संविधान की खूबसूरती को आप खत्म करना चाहते हैं, मुल्क के अमन को आप खत्म करना चाहते हैं और आप लोगों को बेवकूफ बनाते हुए ये मिसाल दे रहे हैं कि कोई मुल्क दो कानून पर नहीं चल सकता और एक ही खानदान के अलग अलग लोग मुख्तलिफ कानून पर, एक ही खानदान में दो कानून नहीं हो सकते। इस तरीके से आप बेवकूफ बना रहे हैं। जी हाँ, मैं आपसे कहता हूं मोदी जी कि आप मुसलमानों को यह कह रहे हैं कि मिस्र, इंडोनेशिया, कतर, उर्दून, शाम, यहां पर कोई तलाक को नहीं मानता, इस्लाम के इस हुक्म को नहीं मानता। तो हमारे लिए न मिस्र मिसाल है, न इंडोनेशिया, न कतर, न उर्दून, न अरब। हमारे लिए कानून अल्लाह और उसके रसूल का है। कोई नहीं मानता है वो जाएगा जहन्नम में, जाए नरक में, हमको उससे क्या लेने देना। हम किसी अरब के कानून को नहीं मानते, हम किसी मिस्र, कतर, उर्दून और इस्लामी कंट्रीज के कानून को नहीं मानते। हम तो अल्लाह और उसके रसूल के फरमान को अपना धर्म, अपना अकीदा, अपना ईमान, अपनी जान, अपनी रूह मानते हैं। हम उस पर अमल करते हुए और इस पर हमें अपने धर्म पर अमल करने की इजाजत हमारे प्यारे संविधान ने दिया है, जिसको आप छीन नहीं सकते हैं। और आप इसमें छेड़खानी कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी नीयत में फतरे है और आप कुछ अलग चाह रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले नरेंद्र जी मोदी को बता दूं कि कोई मिस्र, इंडोनेशिया, कतर, उर्दून, शाम, दुबई, सऊदी, ये हमारे लिए आइडियल नहीं है। अभी मैं दुबई गया तो दुबई में बिल्कुल यूं समझिए कि सारी चीजों को, सारे गुनाहों की चीजों को आम कर दिया गया। दुबई में ढाबे बने हुए, ढाबे पर बेली डांस हो रहा है और सब कुछ हो रहा है।
तो क्या आप ये कहेंगे कि दुबई में अगर भाई बहनों अगर दुबई में बेली डांस हो रहा है तो मुसलमान इसको हो रहा है क्यों कह रहे हैं? दुबई भी तो मुसलमानों का मुल्क है। हमारे लिए दुबई, कतर, उर्दून, शाम और ये हमारे लिए आइडियल नहीं है, नमूना नहीं है, मिसाल नहीं है। हमारे लिए आइडियल, नमूना, मिसाल प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफेट मोहम्मद और प्रेषित मोहम्मद हमारे लिए मिसाल है। हम उनकी बातों पर अमल करते हैं। हमारे लिए कोई शाह और शाह सलमान और शाह ये फुला ये हमारे लिए कतर, उर्दू ये मिसाल नहीं है। तो प्लीज मैं मोदी जी से हाथ जोड़कर यह कहूँगा कि वो जो घटिया किस्म की जो कुर्सी है, सत्ता है, हुकूमत है, वो जो 2024 का इलेक्शन है उसको गरमाने के लिए आप ये अगर न करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर कुर्सी आपके नसीब में मिली होगी तो बगैर खून खराबे और बगैर अमन को ख़राब और शांति को ख़राब किए बगैर आपको मिल जाएगी। प्लीज़ आप दिमाग में से ये निकाल लो कि जब तक के हिंदू मुसलमानों में नफरतें पैदा नहीं होंगी तब तक के कुर्सी नहीं मिलेगी। प्लीज़ मोदी जी आप ये दिमाग में से निकाल लो। खुदा ने आपके नसीब में अगर कुर्सी लिखा है तो आपको कुर्सी मिलकर रहेगी। मगर ये जो घटिया हरकतें हैं, ये जो हिंदू मुसलमानों में नफरतें पैदा करेगी, मुल्क के अमन और शांति को ख़राब करेगी, आप ये हरकतें न करें। यकसा सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड ना हमें पहले कभी पसंद था, ना आगे कभी हम इसको मानेंगे, क्योंकि यकसा सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड ये जो है ये हमारे रूह, हमारे ईमान, हमारे अकीदे, हमारी आस्था के खिलाफ है और मोदी जी ये हमारे संविधान के भी खिलाफ है। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है। बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट।